A very good morning to all my dear students. I think all of you are fine. Today we will start chapter number 15, light. So, what do you think light is? In Diwali time, you see many lights are there. You can see the diyas and many more lights. Okay. So, light मतलब क्या? कि only यही light है? Light from the sunlight. Okay. So, this how it is coming and what are their importance we will study in this chapter. So first let me introduce you with the chapter. Light is a form of a energy and through it we can enable to see any object when light falls on it. So light is what? Light is a form of a energy. So now you can see the picture of a CD, a child holding a pipe, hollow tube. So, in the hollow tube, he is hiding something. In the straight tube, he can see the object, but through the bent tube, he can't see the object. Why? Because light travels in a straight line. Where do you think the color of the CD are coming from? You can see the colors present in the CD. Is CD has this color? No. So, why this color is there? Because CD reflects light when it comes out and it is colored. Okay. Here what you can see, the person is trying to pass the sunlight. And what he uses to pass the sunlight? He uses the mirror. Because through mirror, the light is getting passed from the sunlight. Visit to some park, what you can see that there are very funny mirrors are there. You stand in front of the mirror and it get distorted. मतलब वो फैल जाता है या तो छोटा दिखता है मोटा दिखता है. So why it is so? Because these mirrors are also having what? Curved surface. So we covered in this chapter how light propagates, how light behaves when reflected by mirror, lens and prism. So one by one, I will explain you. First, we will start with rectilinear propagation of light. Light travels always in a straight line, in a uniform transparent medium. Medium उसका transparent होता है और vacuum जहाँ पे empty space होता है. So this mode of propagation of light is called what? Rectilinear propagation. Rectilinear मतलब वो जो light है वो straight ट्रैवल करता है. तो आप कोई भी वैक्यूम मतलब खाली रूम में अगर आपके विंडो के थ्रू लाइट आ रहा है, सनलाइट आ रहा है, तो दैट लाइट कम्स व्हाट इन अ स्ट्रेट लाइन. सो दैट इज व्हाट? दैट इज यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंट मीडियम. ओके. नाउ थ्रू एन एक्टिविटी we will verify that light travels in a straight line. So you have to take a flexible rubber or a plastic tube or a straw of length 10 inches. Then light a candle. Then hold the tube absolutely straight. एक बार आपको straight पकड़ना है. One opening end जिसमें आप लाइट से लाइट पास कर रहा है और एक साइड जो है आपको क्या करना है? बेंड करके ट्यूब को आपको देखना है. Okay. Now bend the tube. So what do you see at this time? You see that when the tube is held straight, मतलब अगर straight रखा गया है तो light can be seen. आप इस कैंडल की लाइट को देख सकते हो, लेकिन जब बेंड करके रखा गया है आप नहीं देख सकते. That indicates what? That light travels in a straight line. Rectilinear propagation of light explains many things. Okay, one of the thing is you can see in the picture that when you shine a torch in your dark room, what you see? A beam of light coming. एक light देखते हो आप. अगर torch जलाते हो तो उसका beam of light अंदर आता है. If you place a pencil, अगर हम एक pencil जो है ये light के आगे, bulb के आगे हम रख देते हैं, तो that means what? The shadow is formed in the wall. You can see, and it is what? Straight. Why it is so? बिकॉज यहाँ पे रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट हो रहा है एंड आप इसको लाइट को जो है जाने के लिए पेंसिल उसको रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, इसीलिए जो है लाइट ट्रैवल नहीं कर पा रहा है वॉल तक. इसीलिए पेंसिल का शैडो आप वॉल पे देख पाते हो.
सपोज अब बहुत सारे एग्जाम्पल्स डेली लाइफ के ले सकते हो. सपोज योर फ्रेंड इज हाइडिंग समवेयर, आप हाइड एंड सीक आपके फ्रेंड के साथ खेल रहे हो, तो आपका फ्रेंड जाके जो है चेयर के पीछे छुप गया है. ओके, यू कैन नॉट सी योर फ्रेंड. वाई? बिकॉज उसके बीच में क्या आ गया? चेयर आ गया है. बिकॉज लाइट स्ट्रेट ट्रैवल करता है, इसीलिए आप अपने फ्रेंड को नहीं देख सकते हो. लेकिन अगर लाइट बेंट फॉर्म में ट्रैवल करे तो आप क्या अपने फ्रेंड को देख पाओगे, जो कि नहीं हो सकता है. इसीलिए हाइड एंड सीक हम खेलते हैं, हम कहीं छुप जाते हैं तो हमको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं. ओके, यू कैन सी एन ऑब्जेक्ट व्हेन लाइट फॉल्स ऑन इट. सो व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ सरफेस इट बाउंसेस ऑफ द सरफेस. सो दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन. लाइट कोई भी सरफेस पे गिरता है तो वो वापस जो है बाउंस बैक करता है. तो आप इसमें देखें कि 3 रेज ऑफ लाइट आया, फिर वो 3 रेज जो है ऊपर की तरफ ऑफ, मतलब बाउंसेस ऑफ ऊपर की तरफ चला गया. दैट मीन्स इसको रिफ्लेक्शन बोला जाता है. रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो ऑल टाइप्स ऑफ सरफेस रिफ्लेक्ट व्हाट? लाइट. हर टाइप का जो भी सरफेस है वो लाइट रिफ्लेक्ट करता ही है, लेकिन सरफेस भी अलग अलग होते हैं. तो व्हेन the light from the sun or any source fall on the object, कोई भी जगह पे कोई ऑब्जेक्ट पे अगर सनरेज फॉल होता है, we can able to see the object, क्योंकि light reflected by the object it reaches our eyes. So while talking reflection, what we refer दो सरफेस का होता है, एक है स्मूथ सरफेस और एक है रेगुलर सरफेस. तो जो कि स्मूथ सरफेस है और रेगुलर सरफेस है, उसमें जो है वो लाइट का जो रेज है वो स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है, जो बाउंस ऑफ करता है. बट जो इरेगुलर सरफेस है, या तो उसको हम क्या बोलेंगे? रफ सरफेस है, तो उसमें जो लाइट, जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट होता है वो सभी डायरेक्शंस में ट्रैवल करते हैं. तो यू कैन सी वो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन जो रेगुलर रिफ्लेक्शन है वो एक ही डायरेक्शन में जो है लाइट जा रहा है, पास कर रहा है. सो कोई भी आप रफ सरफेस, जैसे कि रोड, कहीं पे रोड एकदम क्लियर है तो वहाँ पे लाइट ऑफ, जब लाइट पड़ता है तो वो स्ट्रेट. रोड इज स्मूथ, देन लाइट कैन ट्रैवल इन द डायरेक्शन प्रॉपरली. ओके, लेकिन अगर रोड जो है थोड़ा सा ऊपर नीचे है या फिर वो रेगुलर नहीं है, जो इरेगुलर है, तो जो लाइट का जो डायरेक्शन है वो हर साइड में दिखाएगा. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रेगुलर एंड अ इरेगुलर रिफ्लेक्शन. सो प्लेन मिरर का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो आपके ड्रेसिंग टेबल में होता है. ओके, तो इसका जो सरफेस है वो पॉलिश सरफेस है, एंड देन कैन रिफ्लेक्ट द रेज ऑफ लाइट एंड फॉर्म अ क्लियर इमेज. जब वो लाइट का जो आपके ड्रेसिंग टेबल के ऊपर कोई लाइट है वो रिफ्लेक्ट करता है आपके मिरर के ऊपर, तो आप अपने आप को अच्छे से देख सकते हो, है ना. सो व्हाई? बिकॉज इट इज़ व्हाट? इट हैविंग अ पॉलिश सरफेस, प्लेन सरफेस. एनी हाईली पॉलिश्ड मेटल सरफेस, जैसे कि आपके स्टील के बर्तन हैं, वहाँ पे भी लाइट फॉल करता है, स्टेनलेस स्टील का. तो स्टील प्लेट और स्टील वाटर, यू कैन, इट एक्ट लाइक अ मिरर. आप अपना चेहरा को स्टील के प्लेट में या तो पानी में, पानी जब बिल्कुल भी स्टिल है, डिस्टर्ब नहीं है, तो आप देख सकते हो. सो इफ यू लुक एट योर सेल्फ क्लोजली इन मिरर, what do you observe? You observe your own image. Is this bigger or smaller than you? You can see that. Place your palm on your hand on the flat surface of the mirror. Mirror के ऊपर अपना हाथ रखो and study the reflected image. Is the image is bigger, smaller or same size? So that you can see. You can slowly move your hand and you can check that what the hand you are raising in the mirror is showing just the opposite. अगर हम right raise करते हैं तो मिरर में हमको left दिखता है, और अगर हम left करते हैं तो मिरर में हमको right दिखता है. So that is what that is called as was lateral inversion, उसको बोला जाता है. So the image is lateral inversion. Now you stand in front of the mirror and see if you can touch your image in the mirror. You cannot, because image seems to be behind. मतलब तुम्हारे behind में तुम्हारे पीछे के तरफ या आगे के तरफ है.
Such an image is called as what? Virtual image. तो virtual image क्या है? It cannot be formed on a screen. Do you notice anything else about your image? Is this image upside down or compared to you? It is not. रियल इमेज क्या होता है आपको पता है? रियल इमेज जब आप जाते हो मूवी हॉल में तो आपको एक स्क्रीन दिखता है और आपके जस्ट सीट के पीछे एक लाइट आता है वहाँ से जो कि स्क्रीन पे फॉल होता है ना, और हम स्क्रीन में जो मूवी आता है उसको देख सकते हैं. तो दैट इज़ अ रियल इमेज. सो इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्लेन मिरर क्या है? प्लेन मिरर प्रोड्यूस एन अपराइट और वर्चुअल इमेज. अपराइट मतलब जो आपके इमेज जो अपसाइड डाउन हो, अप से लेके डाउन तक हो. ओके, दैट उसको अपराइट बोलते हैं. इमेज इज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट. इमेज का साइज, आपका साइज और आपकी इमेज का साइज जो मिरर में फॉर्म हो रहा है वो सेम होना चाहिए. द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फॉर्म फ्रॉम द मिरर इज इक्वल. मतलब आप जहाँ पे खड़े हो मिरर में भी वैसे ही दिखा रहा है. अगर पास खड़े होगे तो पास दिखाएगा, दूर खड़े होगे तो. इमेज इन अ प्लेन मिरर इज लैटरली इन्वर्टेड. दैट मीन्स अगर आप अपना राइट हैंड शो करते हो तो मिरर में लेफ्ट हैंड दिखाएगा, अगर लेफ्ट हैंड शो करते हो तो मिरर में राइट हैंड दिखाएगा. तो ये सब चीज़ जो है प्रॉपर्टी होने चाहिए. लेट अस सी सम क्वेश्चन आंसर्स. फिल इन द ब्लैंक्स. A dash surface reflects a parallel beam of light in only one direction. That is what? Smooth surface. Second one, irregular reflection is also called dash reflection. It is what? Diffused reflection. Third is, a mirror is a dash surface, a regular surface. Fourth is, the image formed by a plane mirror is dash. It is virtual. Thank you for watching this video. Next, we will start with the spherical mirror in next part.